भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संस्कृति यात्रा। मैं हूं प्रीति सिंह। आज की जर्नी हमें भारत की हिस्ट्री की ओर ले जाएगी। हमारे पहले सेगमेंट विशेष में कर्नाटक के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में मालप्रभा रिवर बैंक्स पर एहोले, बादामी और पत्तडकल की हिस्टोरिकल साइट्स मिलकर चालुक्यन हिस्ट्री और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस का ट्रायंगल बनाती हैं। इनमें से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पत्तडकल टेम्पल्स भारत की नॉर्दर्न और सदर्न आर्किटेक्चर का बेहतरीन अमालगमेशन है और साथ ही चालुक्यन डायनेस्टी की प्रॉस्पेरिटी, डिवोशन और आर्टिस्ट्री से परिचित कराती हैं। पत्तडकल का मतलब है राज्याभिषेक का स्थान या प्लेस ऑफ कॉरोनेशन। चालुक्यन डायनेस्टी के कई राजाओं का राज्याभिषेक इसी भव्य मंदिर समूह में हुआ है। यहाँ कुल 10 मंदिर हैं, जिनमें से 9 हिंदू मंदिर हैं और एक जैन मंदिर। तो आइए इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को करीब से देखते हैं फिल्म सेक्रेड एक्सीलेंस पत्तडकल के माध्यम से। Amidst the ambience of the green, the remnants of the 8th century monumental heritage still spreads its wings of creativity, which is frilled by the blue skyline. Yes, this is Patatkal, the World Heritage Site acknowledged by UNESCO, as the citation tells that Patatkal remains a ground for experimentation of temple architecture. Patatkal is situated in Bagalkot district of Karnataka, some 22 kilometers from Aihole. Between 740 and 745 AD, this sacred space became a ground for architectural creativity to commemorate the victory of Vikramaditya II over the Pallavas of Kanchipuram. The poetry in this stone is scripted through curves and curvature, standing out as one of the unique creative venture undertaken during the Badami Chalukyan era. Lokeshwara, or the Virupaksha temple, is one of the strongest architectural punctuation of Patatkal. This temple is no remnant of a bygone era, but is an embodiment of theocultural continuum as worship is still in vogue. Vikramaditya II's first queen, Maharani Lokamahadevi, had built this Shivalaya. The ornate sculpted figures to Blackstone Nandi give a strong statement of creativity. The contours of Nandi with its muscular curves to the wrinkles of skin portrays the skill of the sculptors, who delve deep into the theo-perceptions and also address the mortal callings of materialistic people who cruise through life and time with all the same enjoyments. The perfect figures not only show the shapes in the context of Shilpa Shastra, but those sculptors paid enough attention to give the ornate and translucent look to the costumes of the figurines. The hairstyles, the headgear are some of the points of this Mahashila Prasada or Virupaksha temple. On the entrance of the main gate, we find sculptures of Padmanidhi and Shankhanidhi, the wealth protectors of the temple shown through wealthy, relaxed, dwarf-like contours to show the aspect of Kubera. Mukhamandapa ceiling has Surya Deva, which is called Chatushki. Now we are nearing to the Shivalinga Lokeshwara,
posited on the Garbhagriha, seen from Sabha Mantapa, which has ornate pillars which are studded with floral designs through geometric projection, encompassed with circular form of human motifs like the mature couples. No two pillars are the same, and we even find storylines of Shiva Purana. Interestingly, we find that the contemporary scenario where Queen is treated by the Lady Vaidya. Some panels of sculptures depict the scenes from Ramayana and Mahabharata. The sculptures loudly speak out with strokes of curves. Thus, we find the element of narrative sculptures in the Virupaksha temple. The Patatkal temple complex provides a sacred passage to feel the pulses of the 8th century. The ascending tiers of gopurams with the varied hues are the hemming of this ecclesiastical corridor. The multi-faced temple with 3 doorways, posited with lyrical figures, are some of the catch points of this Lokeshwara temple. The passage for parikrama around the temple was the final grinding of temple architectural experimentations of Patatkal. Through Patatkal, the sacred corridor, we continue to explore as we reach the Trilokeshwara temple, built by the second queen of Vikramaditya II. The remnants of Nandi Mandapa coils one's memory to another time. On the walls we encounter the 2 beautiful ladies with high aesthetics of hairstyles. Then we find the Ugra Narsimha Murti with the interplay of force and ferociousness. As we step in, we encounter the vast Sabha Mantapa with ornate pillars depicting storylines of the Bhagavata, which theosophically amalgamates the Shaivite and Vaishnavite theosophic contemplation, which also unites one and all beneath the hoods of Trilokeshwara. In the Patatkal temple complex, we encounter a score of smaller temples like Jambulingeshwara, Galaganatha, Chandrasekhara, Sangameshwara, etc. The ornate Sabha Mantapa with pillars and rectangular panels of forms and themes, apart from low-relief sculptures, are seen. Pauranic storylines alongside the simplistic Garbhagriha are some of the points of references. The Rekha Nagara Shikhara remains a dormant factor in this Patatkal temple complex as we continue to move from one temple to the other. Now we encounter the huge Papanatha temple built in 748 and highly ornate Mukha Mantapa with illustrative door jambs, with figures below link this world to the other, as this temple is also known as Mukteshwara Devalaya, meaning the salvation. Routing around the temple Pradakshina Patha are studded with Devakoshtha, or the iconography of divine posited with a framing structure obliquely. Jalandhara or ventilations are also found. Moreover, we saw the iconographic references of human activities, their lifestyles, costumes, interpolarized with divine figures, which enthuses a feeling of spiritual cultivation and paves the path for emancipation after touching zenith of mortal creativity. Patatkal remains a signature in stone of Badami Chalukyan period. The shapes and themes interjoining with splendor of architectural excellence remains a playground for the young, a space for theosophic contemplation for a few, but for all, this is a space for reverence at theocultural and architectural levels. The silhouettes of Patatkal enjoins time and enthuses a future for the great Indian cultural continuum. We are proud of the present time,
but we do a deep naman to those hands who created the wonder of another time and provided us an inroad to tool through progress of any given time as philosophy of creativity continues. अभी आपने देखा पत्तडकल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जहां डिवोशन, आर्किटेक्चर और चालुक्यन डायनेस्टी का ग्रैंडियर एक साथ देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं संस्कृति यात्रा के अगले सेगमेंट धरोहर की ओर, जहां हम बात करेंगे हमारे फोक म्यूजिक की। फोक म्यूजिक हमारी संस्कृति का इंटीग्रल पार्ट है और इसे इंटैक्ट रखने में हमारे लोक गायकों का वाइटल कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही एक फोक सिंगर हैं जिन्होंने अपने डिवोशनल सॉन्ग्स से झारखंड के फोक और नागपुरी लैंग्वेज को एक नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी अवार्डी प्रसिद्ध लोक गायक मुकुंद नायक जी की। मुकुंद नायक जी फोक सिंगर के साथ ही लिरिसिस्ट और फोक डांसर भी हैं। तो आइए सुनते हैं पद्मश्री मुकुंद नायक जी के सुरों में नागपुरी भाषा में मां शारदा, मां सीता और भगवान शिव की आराधना। रिधि सिद्धि शारदा के, रिधि सिद्धि शारदा के, शक्ति आदि सीता माँ के। इसी वाचारण राजा इसी रे धारी, प्रेमानंद खेल बझुमारे। शिवाचारण राजा, शिवाचारण राजा श्री धारी, प्रेमानंद खेल बझुमारे। दमना सुजाना संगे, दमना सुजाना संगे मिली जुली से रहेंगे। नारा नारे का राधा राधा रे, प्रेमानंद खेल बझुमारे। नारा नारे का राधा राधा रे, प्रेमानंद खेल बझुमारे। डिवोशन विद फोक ट्यून्स, यही तो भारत की खूबसूरती है कि हर गीत अपनी मिट्टी की खुशबू समेटे हुए है। और अब संस्कृति यात्रा में बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर, जहां आज भी हमारे फोक ट्रेडिशंस जीवित है। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक मेगा प्रोजेक्ट चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसका एम है भारत के गांव की कल्चरल मैपिंग करना, ताकि हमारे विरासत को डॉक्यूमेंट किया जा सके। और इसी कड़ी में आज हम चलेंगे जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित थियाल गांव की ओर। चौतरा माता पहाड़ी पर बसा थियाल गांव, जो अपनी बशोली पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। कई मंदिरों वाला ये गांव श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर के लिए जाना जाता है। गांव में हर साल नाग पंचमी पर 10 दिन चलने वाले मेले का आयोजन किया जाता है, जहां मुख्य रूप से डोगरी भाषा बोली जाती है। तो आइए चलते हैं
थियाल। थियाल खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा ये गांव अपने जगन्नाथ स्वामी मंदिर के लिए जाना जाता है। ये गांव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। सन 2011 में हुई जनगणना के अनुसार गांव की कुल आबादी 505 है। यहाँ स्थानीय रूप से डोगरी भाषा बोली जाती है। यहाँ की साक्षरता दर 89.28% है। गांव में एक कन्या विद्यालय और एक हायर सेकेंडरी विद्यालय मौजूद है। सरकारी योजनाओं के योगदान से थियाल के प्रत्येक घर तक बिजली, स्वच्छ जल, रसोई गैस और शौचालय की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा चुकी है। गांव की सड़कें पक्की बनी हुई हैं और जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई हैं। गांव में पीने के पानी, पुरुषों के नहाने, महिलाओं के नहाने, सिंचाई के जैसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पानी की बावलियां हैं, जिनकी कुल संख्या 10 हैं। स्थानीय निवासियों का मुख्य रोजगार सरकारी, गैर सरकारी नौकरी और कृषि है। यहाँ पकाए जाने वाले विशेष डोगरी पकवानों में घेवर, चरोली और खीर का पाना एक अलग ही मजा है। परंपरा के अनुसार घेवर को नववधु के आगमन के समय बनाया जाता है। चरोली एक प्रकार की रोटी है जो विशेष तौर पर बरसात के मौसम में बनाई जाती है। यहाँ के बुनकरों द्वारा कंबल बनाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में छाल कहा जाता है। इन कंबलों को स्थानीय भेड़ों की उम्दा गुणवत्ता की ऊन से बनाया जाता है। इस गांव का नाम यहाँ के राजा थियाल सिंह के नाम पर रखा गया था। कभी गांव में उनका किला मौजूद था, जो कि आज पूर्णतः नष्ट हो चुका है और उसके स्थान पर विद्यालय बन गया है। यहाँ मौजूद जगन्नाथ स्वामी मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 150 साल पहले हुआ था। यहाँ स्थापित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है, जो कि ओडिशा राज्य से लाई गई थी। प्रथा के अनुसार इस मूर्ति को प्रत्येक 12 साल में नई मूर्ति से बदल दिया जाता है। यहाँ के लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी पर 10 दिनों तक चलने वाले मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेले की शुरुआत कुश्ती के दंगल से की जाती है और अन्य दिनों में डोगरी लोक नृत्य, संगीत आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ठंडड़ी ठंडा पानी पीना,
खुशहाल मेरे पहाड़ां दा जीना, हवा ठंडड़ी ठंडा पानी पीना, खुशहाल मेरे पहाड़ां दा जीना। प्रकृति की गोद में बसा थियाल गांव डोगरी कला, संस्कृति, परंपराओं और खान पान का अनुभव लेने के लिए एक उम्दा पर्यटन स्थल है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके रिव्यूज हमारे लिए अवेलेबल हैं। अगर आपके पास भी अपने गांव, एरिया या फोक ट्रेडिशन से जुड़ी कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। नमस्कार। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र जम्मू एवं कश्मीर और जम्मू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक विभाग ने रानी लक्ष्मीबाई अ टाइमलेस सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें वक्ताओं ने रानी लक्ष्मीबाई के साहस, नेतृत्व और नारी सशक्तिकरण में उनके कालजयी योगदान पर विचार साझा किए। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र गोवा ने कला एवं संस्कृति निदेशालय गोवा के सहयोग से भारत के आदिवासी नायकों की भावना और नेतृत्व का उत्सव मनाया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति भवन में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कला एवं संस्कृति निदेशालय गोवा के उप निदेशक श्री मिलिंद यू माटे ने किया। IGNCA ने अहमदाबाद विश्वविद्यालय के विरासत प्रबंधन केंद्र के सहयोग से विरासत प्रबंधन, शिक्षा और व्यवहार, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी और विरासत स्थिरता विषय पर 6ठे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, अहमदाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पंकज चंद्रा, प्रोफेसर मौलिक कौशल और पर्यावरण कार्यकर्ता श्रीमती बसंती नेगी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण रहा IGNCA के जनपद संपदा प्रभाग द्वारा आयोजित विशेष सत्र, जिसमें आज की पर्यावरणीय चुनौतियों में पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रथाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा हुई। साथ ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म हल्मा इट्स टाइम टू कॉल का प्रदर्शन भी किया गया। IGNCA और कर्णावती यूनिवर्सिटी गांधीनगर ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। दोनों संस्थाओं के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य है शोध, क्षमता निर्माण, हेरिटेज स्टडीज, सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण और बहुविषयक शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ताकि इन क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित हो सकें। IGNCA की ओर से सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और कर्णावती यूनिवर्सिटी की ओर से संस्थापक अध्यक्ष रितेश हाडा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। IGNCA के कला दर्शन विभाग ने 2 दिवसीय वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन किया। समारोह का पहला दिन कला और संस्कृति के रंगों से सराबोर रहा। विविध विधाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए आयोजन ने अद्भुत सांस्कृतिक वातावरण रचा। समारोह की शुरुआत संस्कार भारती के सहयोग से आयोजित सौहार्द, सामूहिक सद्भाव चित्र प्रदर्शनी और सिक्किम विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की वाद्य यंत्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुई। IGNCA के अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय और सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथियों में सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK स्वाइन, संस्कार भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री अभिजीत गोखले, कला दर्शन प्रभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ऋचा कंबोज और राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के निदेशक डॉक्टर मयंक शेखर उपस्थित रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में उस्ताद कमाल साबरी के सारंगी वादन ने वातावरण को मधुर तानों से भर दिया। तो वहीं संगीता चटर्जी और कल्पतरु डांस एंसेंबल की मनमोहक प्रस्तुति दिव्यराज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरे दिन का कार्यक्रम और भी सुरमई रहा, जब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका
विदुषी डॉक्टर सुभद्रा देसाई ने अपनी सोलफुल प्रस्तुति से समा बांधा। इसके बाद आभा श्रीवास्तव और उनके समूह ने बुंदेलखंड के पारंपरिक बधाई नृत्य की जीवंत प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। विविध कलाओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सुसज्जित कला दर्शन का वार्षिक दिवस समारोह दर्शकों के हृदय में अविस्मरणीय अनुभव के रूप में दर्ज हो गया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।